Namaste. Welcome to Arogya Tathya, a Facebook Live program organized by Sukafa Multi-Speciality Hospitals. We wish you a happy new year to all of our followers. Today we have got a new topic to discuss with all of you about joint pain, bone health and osteoarthritis. As you grow older, you might face many difficulties related to bone health, joint pain and other associated symptoms and diseases which might restrict your freedom of movement. And it sometimes make you irritated also. Sometimes it affects your mental health and suppress your ability to do regular activities by your own. As we all love freedom in every aspect of our life, we like freedom too in our movement. If the body is not supporting you the right way, this is the time to take care of your health and seek attention. So today we have invited Dr. Uday Arun Ranade, consultant orthopedic surgeon. He is associated with Sukafa Multi-Speciality Hospitals. A warm welcome to you, Doctor, in our live show. Namaste. Let me introduce Dr. Ranade with all of you. Dr. Uday Ranade, consultant orthopedic surgeon in trauma surgery and joint replacement surgery associated with Sukafa Multi-Speciality Hospital. He has done MS in orthopedics and traumatology from St. Petersburg State Pediatric Medical Academy. He has vast experience in trauma surgery and joint replacement surgery. After post-graduation, he has done fellowship on joint replacement surgery from Germany and Russia. He has also done specialization in principles of fracture management in Davos, Switzerland. He was associated with Global Hospital and Research Center Mount Abu and made joint replacement program affordable for local patients. With a special interest in joint replacement surgery and trauma care, he wants to make this treatment beneficial and affordable for under-resourced communities. A very warm welcome once again, Doctor, in our live show today. And today, on behalf of our audience, we have got some questions for you. Sure. So let us answer one by one. And dear audience, if you wish to drop any queries or any concerns, please don't hesitate to write us here today. Doctor, the first question is, ठंड बढ़ रही है, सबको पता लग रहा है कि चारों तरफ ठंड है, जॉइंट में टाइटनेस है, बोन हेल्थ इज आल्सो लाइक गिविंग ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशली जो ग्रोइंग एज में है उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है. तो डॉक्टर, ये जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, इसका कारण क्या है? Arthritis is a very big condition, and there are many sub conditions along with it. Right. One of them being that it can be degenerative, मतलब बढ़ती हुई उम्र में जो, और ये कार्टिलेज ही है जो हमें अलाउ करता है होते रहे, और काफ़ी लंबे समय तक मतलब चलने वाला ये कार्टिलेज है, लेकिन तकरीबन अराउंड 35-40 इयर्स के आसपास वो थोड़ा सा डिजेनरेट होने लग जाता है, मतलब व्हाट वी कॉल एज चेंजेस, डिजेनरेटिव चेंजेस इन द कार्टिलेज. एंड इवेंचुअली ये होता है कि लेटर ऑन धीरे धीरे वो कार्टिलेज का इरोजन होने लगता है, जिससे कि आर्थराइटिस के सिम्टम्स निकल आते हैं, मतलब जैसे कि दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना. Very commonly we find these arthritic changes in elderly patients above say 45, 50 and above. Right. And nowadays we are also seeing this osteoarthritis in younger patients as well. Very true. But primary arthritis is primarily degenerative and some amount of inflammatory component. But there is a secondary type also which can be because of injury to this cartilage. अगर ये जो cartilage की lining है bones के end में, जहाँ पे joint form होता है, अगर उसमें कोई डैमेज हो जाए, किसी जैसे फ्रैक्चर हुआ या फिर और कोई इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें भी एक प्रकार का आर्थराइटिस होता है, और दर्द और सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं. बस इसमें यही होता है कि इसमें एज रिलेटेड कुछ नहीं होता, जो बेसिक वजह होती है जिससे कि जैसे फ्रैक्चर हुआ या कोई इन्फेक्शन हुआ था पहले, तो उसकी वजह से जो जॉइंट डिजेनरेट होता है उसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं. तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है बेसिकली एज रिलेटेड, मोस्टली हम लोग जो मैक्सिमम देखते हैं वो एज रिलेटेड देखते हैं प्राइमरीली.
सो स्पेशली आपने एम्फेसाइज किया है कि बहुत सारे कारण हो सकता है इस जोड़ों के दर्द एंड घुटनों के दर्द ये सब में, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ मेजर कंसर्न। यस। और वो यूजुअली थोड़ा सा उम्र के साथ साथ ही देखने में आती है। अच्छा, तो डॉक्टर बहुत सारे यंग ग्रुप्स भी आजकल इसके बारे में चर्चा करते हैं कि उनको भी घुटने का प्रॉब्लम या फिर जोड़ों का दर्द होती है, तो वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? ये आपके नहीं, कैसे होता है कि यंगर पेशेंट्स में जनरली कार्टिलेज का थिनिंग या कार्टिलेज की क्वालिटी को अगर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आप अगर जॉइंट को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहे हो, जैसे बहुत ही एक्सेसिव आप जिमिंग कर रहे हो या बहुत ही एक्सेसिव एरोबिक्स कर रहे हो, जो मतलब आपकी जॉइंट्स उतने लेने जैसे हैं नहीं। जॉइंट का कार्टिलेज कब खराब होता है? या तो आप जॉइंट के लोड लेने की क्षमता से ऊपर उसके ऊपर आप लोड डाल रहे हो तो, या फिर दूसरी वजह होती है कि अगर जॉइंट वैसे भी नॉर्मल नहीं है और वैसे ही कमज़ोर है या कार्टिलेज का क्वालिटी वैसे ही कमज़ोर है, तो नॉर्मल लोड डालने पे भी वो आर्थराइटिस इन यंग, ये आजकल बहुत ही मतलब सब जगह पे स्टडी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मतलब हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली एनी मोर, वी आर फाइंडिंग दिस इवन इन 35-40 ईयर्स एंड जनरली इट स्टार्ट्स विद द नी कैप, जो ढकनी जो होती है हड्डी के मतलब जोड़, जो हम लोग जो नी जॉइंट का अगर हम बात करें, बिकॉज हम लोग इंडिया में ज़्यादातर नी जॉइंट्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखते हैं, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर इनके भी होते हैं बट उतना कॉमन नहीं होता। तो ये जो ढकनी होती है, जो ऊपर की नी कैप जिसको हम कहते हैं, उसके अंडर सरफेस में जो कार्टिलेज है वो वेयर ऑफ होने लगता है। सो दिस इज इन द यंगर पॉपुलेशन वी कॉल इट बाय डिफरेंट नेम, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली, वेरी फैंसी नेम बट मीन्स द सेम थिंग दैट योर कार्टिलेज इज गेटिंग बोर्न ऑफ and we need to rectify this at a younger age group because the minute you start letting it go or you start not taking care of it at that point in time, meaning that your arthritis, if supposing it were to come at 60 years of age, तो वो फिर आ जाएगा 40-45 में ही। तो जो आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, जैसे दर्द होता है, सुबह में उठने में जो स्टिफनेस फील होती है, जोड़ों में सूजन होती है, जोड़ जब आप मूव करते हो, खासतौर पे नी जॉइंट में आप देखो तो ऐसे अंदर से आवाज़ें आती हैं छोटी छोटी, जैसे एंड स्टेज आर्थराइटिस में होता है। तो ये सारी जो सिम्टम्स है, खासतौर पे जो स्वेलिंग और रिडक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब जितना जोड़ आपका मुड़ना चाहिए उतना आपका जोड़ नहीं मुड़ रहा, दीज आर ऑल साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड अगर किसी को भी ये साइंस एंड सिम्टम्स है तो उसे एटलीस्ट एक सिंपल एक्सरे तो करके देखना होता है, बट एक्सरे अपने मन से नहीं करे बिकॉज हर व्यूज़ अलग होते हैं, तो डॉक्टर की राय लेके ही करना चाहिए एक्सरे। एटलीस्ट आप डायग्नोज करो कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो देन वी कैन टेक केयर ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट कोई आता है वो एंड स्टेज आर्थराइटिस में ही होता है, कोई पेशेंट्स अक्सर में फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में भी आते हैं और उनका काफ़ी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब विदाउट एनी मेजर इंटरवेंशन, जैसे फिजियोथेरेपी हुआ, एक्सरसाइज हुआ। बट मेन चीज़ जानना ज़रूरी है कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। मेन तो जोड़ों का दर्द सबसे पहला, और लॉस ऑफ मोबिलिटी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे आप अगर आपके काम के इसमें या दिनचर्या में आप अगर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते हैं या नीचे ज़मीन पे बैठते हैं चौकड़ी मार के, या इंडियन कमोड का इस्तेमाल करते हैं वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएं तो ये प्रॉब्लम देने लगती है। सो आपकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये ज़रा ऐसा नहीं है कि आप इसको नज़रअंदाज कर सकें। आई फील इट एकदम सही बात है। जैसे कि हमने शुरू में यही बोले थे कि सबको फ्रीडम बहुत पसंद है, पर मूवमेंट की फ्रीडम वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, एंड वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इन दैट। नेवर। बहुत सीनियर लोग सोचते हैं अभी तो उम्र हो गया इसलिए चल नहीं पा रहे, घुटने में प्रॉब्लम है, एंड दे ट्राई टू सप्रेस द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ कंसल्टिंग समबडी। सो होप आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट बहुत सारे हमारे सिम्टम्स जो शरीर हमें बार बार दिखते रहते हैं डिफरेंट तरीके से, जैसे कि मॉर्निंग स्टिफनेस, जोड़ों का आपने बोला है, जो दर्द है, सूजन है, मोड़ने में तकलीफ है, तो ये सब चीज़ नज़रअंदाज ना करें और इमीडिएटली डॉक्टर का सलाह लें। एटलीस्ट यू शुड टेक अ कंसल्टेशन। करेक्ट, राइट डॉक्टर। सो डॉक्टर, नाउ द थिंग इज दैट वी अंडरस्टूड व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस अ लिटिल, you know, a brief way. Now what are the multiple ways of treating osteoarthritis? अब जब हम यहाँ पर तो मोस्टली नी जॉइंट और हिप जॉइंट की ज़्यादातर बात करते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन में हम ज़्यादातर यही देखते हैं। एंकल और शोल्डर में भी जॉइंट्स डिजेनरेट होते हैं। एक्चुअली सारे जॉइंट्स कोई गिरता है, जैसे अक्सर
जोड़ों का भी आर्थराइटिस होता है। तो जनरली हम उतना ध्यान उस पर देते नहीं है, क्योंकि लोडिंग जब बहुत ही एंड स्टेज हो जाए तब ध्यान में आता है। तो हम आज अगर मतलब मैं अगर बात करूँगा तो कौन से स्टेज पे आता है हमारे पास, जैसे अगर 1 में तो बहुत सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 भी होता है, जो एंड स्टेज जिसको हम कहते हैं। स्टेज 1 में मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज और ख़ास तौर पे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ये करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अभी बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ डिजेनरेशन नहीं है, मतलब उम्र के साथ साथ होने वाले चेंजेस, इसमें कुछ हद तक इन्फ्लेमेशन के चेंजेस भी होते हैं। और इन्फ्लेमेशन को देखते हुए फिर बहुत सारे, अगर साधारण रीति से हम दर्शकों को समझें, इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन मतलब जैसे आपको कि कोई प्रकार की अंदर से सूजन, बट जो सूजन जो कार्टिलेज के मतलब मॉलिक्यूलर लेवल में हो, जिससे कि जॉइंट का डैमेज अंदरूनी तरीके से हो, जस्ट सिर्फ घिसने से नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 सरफेसेस एक के ऊपर एक रगड़ रहे हैं तो वो हिस्सा घिस गया, ये डिजेनरेटिव होता है। लेकिन जो अंदरूनी स्ट्रक्चर को ही अंदर से खराब कर दे, दैट इज इन्फ्लेमेटरी बेसिकली। कॉमनेस्ट लो कि लोकल बुखार भी आपको काफ़ी लोगों का आर्थराइटिस में लोकल, अगर आप उसके ऊपर स्किन को टच करो तो वो हिस्सा गर्म रहता है। सो दैट इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, बेसिकली साइनोवियल इन्फ्लेमेशन। तो ये वाला जो है, तो इसमें 2 होते हैं ना कंपोनेंट्स, डिजेनरेटिव भी है, इन्फ्लेमेटरी भी है। सेफ दवा है, पेन किलर वो दे, या फिर आप उसको बोलते हैं वो दे, या स्टेरॉइड्स दे। बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ भी है, बट सबके स्टडीज़ के ऊपर से देखा गया है कि ये सारी जो मेडिकेशन, पेन रिलीविंग जो मेडिकेशन है, उससे कई गुना बेहतर है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज। एंड देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ टू इट, एब्सोल्युटली देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। आप कितने भी चाहे दवाई लो और दर्द ये करो, बट डिजेनरेशन जो होना है, जो घुटना ख़राब होते जाएगा, वो होते जाएगा जब तक कि आप उसको एक्सरसाइज करके मजबूत नहीं करते। आप एक्सरसाइज इसमें क्या करना है, मेन चीज़ होते हैं थाई मसल्स। थाई मसल्स को आपको मजबूत रखना है, क्वाड्रिसेप्स जिसको हम बोलते हैं, और हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत रखना है। इससे क्या होता है कि क्वाड्रिसेप्स इज़ द मेन मसल विच सपोर्ट्स द नी जॉइंट। जैसे हम खड़े होते हैं, चलते हैं, तो क्वाड्रिसेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होता है और नी जॉइंट के लिए ख़ास तौर पे। तो अगर उसको हम मजबूत करें, जैसे नॉर्मल विदाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या विथ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस मतलब जैसे वज़न लगाकर हम घुटने को सीधा कर रहे हैं, जो जैसे जिम में जो करते हैं, बट जिम में तो बहुत हाई इंटेंसिटी होता है नॉर्मल फिजियोथेरेपी के पास। तो वो टाइप की एक्सरसाइज भी आप अगर करोगे स्टार्टिंग से, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 40 ईयर्स ऑनवर्ड्स आप चालू कर दीजिए, भले आपको सिम्टम्स नहीं हो, बट दे हेल्प मोर इन द लॉन्ग रन। जैसे ग्रेड 1 से ग्रेड 2 पहुंचने तक थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो उसमें कुछ साल निकल जाते हैं। एजिंग तो सबका ही होना है, डिजेनरेशन सबका ही होना है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट। बट अगर आप एक्सरसाइज करके आप अपने मसल्स को मजबूत रखते हैं, तो काफ़ी हद तक जॉइंट का लोड जो है वो कम हो जाता है, ऑफ लोडिंग जिसको बोलते हैं। दूसरा है कि BMI को आप नॉर्मल रखिए। BMI को बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। 23 के ऊपर अगर BMI बढ़ता है तो एशियन पॉपुलेशन में उसको ऑलरेडी ओवरवेट और फिर उसके ऊपर वाले फिर ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी, ये वाले लेवल्स में जाना है। तो आपको जनरली 22, 23, 24 तक भी अगर आप रखोगे तो आपके जॉइंट्स ठीक रहते हैं। सो दैट इज़ सेकंड लाइफस्टाइल मेन जो चेंज है। बाकी मेडिकेशन वाइज तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में तो हम मेडिकेशंस ट्राई करते ही हैं। उसके साथ साथ देयर इज़ वन पर्टिकुलर सबसेट ऑफ मेडिसिन कॉल्ड विस्को सप्लीमेंटेशन, मतलब जो लाइनिंग है कार्टिलेज, उस जिस मटेरियल का बनता है उसका इंजेक्शन भी आता है आजकल। बट वी हैव फाउंड विद स्टडीज़ दैट स्टेज 4 में वो काम नहीं करता। स्टेज 1, स्टेज 2 में कुछ पेशेंट्स में उसका हेल्प हो जाता है, बट उससे भी मतलब ऐसा देखा गया है कि वो कोई परमानेंट हेल्प नहीं होता, इट इज़ टेम्पररी। And so is steroid injection, which is another way of. And that is also earlier stage. Earlier stages, मतलब जैसे अर्ली स्टेजेस में आप दो उन्हें तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ता है। और आजकल बहुत सारे दूसरे नए एक्सपेरिमेंटल भी आ रहे हैं ट्रीटमेंट्स, बट नन ऑफ देम हैव बीन प्रूवन
The only thing which is proven is that definitely works is exercise and lifestyle modification, maintenance of body weight, that is extremely important. Right. एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल में ये भी होता है कि अगर आपको एक बार आर्थराइटिस हो गया, अगर डायग्नोज हो गया है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो घुटनों के लिए दे आर हार्मफुल, तो आपको वो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नीचे बैठना चौकड़ी मार के, इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन, जैसे इंडियन कमोड वाले पोजीशन में बैठते हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ना बढ़ता है, इसको आपको कम करना है। वॉकिंग बंद कर देते हैं, ठीक है ना, वॉकिंग बंद नहीं करिए, एटलीस्ट 20, हाँ चले जाते हैं, तो 20 मिनट्स का वॉक एटलीस्ट होना ज़रूरी है। इट हैज़ बीन प्रूवन दैट जस्ट 20 मिनट्स वॉकिंग डज नॉट डिजेनरेट द नी फर्दर, इवन इन एन आर्थराइटिक पेशेंट। ओनली थिंग इज पेशेंट दर्द के वजह से नहीं चल पाता। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो काफ़ी पेशेंट्स ये बोलते हैं अभी मोटापा कम नहीं कर सकते बिकॉज चल नहीं सकते, करेक्ट। नाउ आई फील, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट आई फील पर्सनली दैट it is the diet which is more important in terms of weight loss rather than just the exercise. So I think caloric intake and correct amount of micronutrients and macronutrients, I think that is more important. That is more important, but that of course a nutritionist would better say. I'm not really the best judge. That's wonderful, doctor. Yeah. It is really now, it is very clear to all of us now that any disease, like with age it will come, certain diseases, but it is in our hand how we deal with it, right? And we start dealing with it from an early age. We don't wait till it comes. Exactly, because as you said, that first stage and second stage, if we immediately start doing consultation and going to a proper technician and a proper physiotherapist and a dietitian, we can manage all these situations. Absolutely. Right, wonderful, doctor. So doctor, now the second question we would like to ask once again, although you have said many instances that how we can avoid this situation of chronic osteoarthritis and associated symptoms. Now the thing is that we would like to know, since we thought that we will more involve into knee related diseases. Right. Now what are the treatment options you have explained? Now can you have a knee replacement if you have osteoarthritis? Yes, we can. Once we have tried all of these what I have mentioned, एक बार वो सारे प्रयोग करके देख लिए, और अगर पेशेंट को फ़ायदा नहीं है, या अगर पेशेंट हमारे पास पहले ही बहुत एडवांस्ड आर्थराइटिस में अगर आता है, तो फिर डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट बनता है करना। काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा भी होता है, और इट्स अ वेरी वायबल ऑप्शन नाउ, नी रिप्लेसमेंट। इट हैज़ बीन फॉर मेनी ईयर्स। किस तरीके के पेशेंट को आप सलाह देंगे कि नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन फॉर देम? Let me put it this way. What is the indication for knee replacement? Yes, let us put it this way. The most important indication is primarily pain. A patient has to complain of pain. If he does not have pain, then there is no indication for knee arthritis, knee replacement. Primarily pain is the most main whatever indication. ये ऐसी सर्जरी है जो पेशेंट, जैसे मेरे एक सीनियर है, वो हमेशा बोलते थे कि ये पेशेंट को मांगना है आपसे, ये आपको पेशेंट को देना नहीं है कि आप नी रिप्लेसमेंट करा लो। कि पेशेंट का वो कंडीशन होना चाहिए कि वो मतलब हर समय उसको दर्द हो, खास तौर पे लेटने पे, आराम करने में भी अगर जो दर्द हो, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही कम हो चुकी है, और मोबिलिटी कम हो गई है बस इसी की वजह से। अब ये बात अलग है कि उनको और दूसरी कोई बीमारियां हैं जिससे कि वो लेटे हैं बेड पे, तो उनके लिए फिर ये ज़रूरत नहीं है। बट मेन अगर पेन की वजह से उनकी मूवमेंट कम हो गई हो, या क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलो, या दर्द के साथ जी रहे हो, तो डेफिनेटली ये बनता है। सेकेंडरी जो रीजंस है नी रिप्लेसमेंट के, ये होता है कि अक्सर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखते हैं, एक्सरे में जो पिक्चर दिखता है और पेशेंट के कंप्लेंट्स, फिजिकल कंप्लेंट्स, ये कभी कभी मैच नहीं होते। और इसको हम लोग क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डिसोसिएशन बोलते हैं। ये प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि आप देखोगे कि एक्सरे में तो भयंकर है, पेशेंट चल कैसे रहा है, लेकिन एक्चुअली उनको उतनी तकलीफ नहीं होती है, राइट। आर्थराइटिस में घुटने अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, हाँ, जिसको डायरेक्शन अलग हो जाता है, जिसको बो लेग्स या नॉक नीज जैसे बोलते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वो डिफॉर्मिटी बढ़ गई, तो आगे चल के जो हम इम्प्लांट्स यूज़ करेंगे, और अगर डिफॉर्मिटी कम है उसके लिए जो हम इम्प्लांट्स यूज़ करेंगे, इनमें थोड़ा अंतर होता है। जो प्राइमरी आर्थराइटिस, प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं, प्राइमरी टीके आप जिसको बोलते हैं,
उसमें एक तो वो कंपोनेंट्स में ज़्यादा मूवमेंट अवेलेबल है, उसकी लॉन्जेविटी मतलब वो कितने साल चलेगा बॉडी में, उसमें भी काफ़ी अंतर होता है। वो ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स तो मिनिमम आजकल मिल ही जाते हैं। विल गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, Everybody will अडेप्ट इन अ डिफरेंट वे। बट अगर हम डिफॉर्मिटी वाले पोजीशन में अगर जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं उसकी लॉन्जिविटी कम रहती है, तो वो लेवल तक जाना नहीं है। सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, रिजल्ट्स उतने सुपीरियर नहीं होते जैसे प्राइमरी नी के हैं। तो ये एक छोटा सा हिस्सा बन सकता है इंडिकेशन का, जब पेशेंट को उतना पेन नहीं है बट डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं विजिबली दिखता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आर्थराइटिस के ऊपर डिफॉर्मिटी मतलब आगे चल के पेन होना ही है। वैसे तो वो तो बगैर पेन का तो इम्पॉसिबल है डिफॉर्मिटी वैसे होना। दिस इज आई एम टॉकिंग डेवलपमेंट ऑफ आर्थराइटिस एंड डिफॉर्मिटी, नॉट डिफॉर्मिटी फ्रॉम बिफोर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्राइमरी इंडिकेशन इज पेन, that is the main thing. The patient has to have pain enough to disable him and reduce his activities of needing for knee replacement, which we have explained. That's very indicator, right? Now, does age matters for knee replacement? Like, do you think that कि इस एज में ही knee replacement हो सकती है या फिर बहुत उम्र हो गया तो See, previously we were of the opinion, and even now most of us, we feel that knee replacement has to be done for patients who are at least above 55-60 years of age. मतलब बहुत ज़्यादा young patients में हम लोग नहीं ये करते, for the simple reason as I said, every joint has its longevity. जो artificial है वो artificial है, natural तो फिर भी 60-70 साल तो चली गया, implant जो artificial है वो 15-20 साल चलेगा, तो there is always going to be a difference. And if you operate on a patient say in 60 years of age, the chance that he might require a second surgery at 75 or 80 reduces, because जब वो 80 साल के बन जाएंगे पेशेंट तो उनकी जो एक्टिविटी लेवल है वो 60 इयर्स की जैसी उतनी नॉर्मली रहती नहीं है। कोई लोग रहते हैं, वी हैव 90 years also running marathons and things like that. लोग हैं, they are very enthusiastic, they are athletes and all that. So in those patients, yes, if required, then we have to do the surgery again. But we try that we keep only one knee as one replacement as in a lifetime kind of situation. But sometimes what happens is that, say, the productive age of that patient now, when members of society, we are earning for our family, our livelihood. That is the time when we earn maximally. So it is most important that this particular scenario cannot restrict a patient from or a person from performing to his potential. तो फिर उन पेशेंट्स के लिए जहाँ पर एकदम ही आर्थराइटिक हो चुका है और वो काम नहीं कर पा रहा, मतलब उसकी रोजी रोटी खराब हो गई है उसके वजह से, तो देन उनमें तो बनता ही है करना. एंड देन आफ्टरवर्ड्स लेटर ऑन व्हेन ही बिकम्स 60, व्हेन इफ द इम्प्लांट स्टार्ट्स वेयरिंग ऑफ, इसको इम्प्लांट में भी तो वेयर एंड टेयर होता है, तो ये वेयर एंड टेयर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे सेकेंडरी रिप्लेसमेंट मतलब जो करना है, सेकेंड सर्जरी रिवीजन जिसको कहते हैं, वो करना पड़ सकता है. तो आजकल एज का ऐसा इशू नहीं है. एकदम एल्डरली मतलब जैसे 55 to 70 जो है एज ग्रुप, उनमें तो आजकल तो बहुत ही कॉमन हो रहा है, 75 तक भी कॉमन हो रहा है आजकल, सेफली कैन बी डन. इन द एज ग्रुप अबाव 75 या फिर इन दोज पेशेंट्स जिनमें बहुत सारे दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है या फिर हार्ट डिसीज़ है या फिर दूसरे कोई मतलब जिनको स्ट्रोक होके गया है या ऐसे कोई कंडीशंस हैं, तो उनमें हर पेशेंट टू पेशेंट इवैल्यूएट होना चाहिए कि ये पेशेंट सच में मतलब इज ही केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द सर्जरी. हाँ, ही कैनॉट. हाँ, तो ये ऐसा अलाउ नहीं कर रही है हमें ऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि बहुत ही मतलब सीवियर डेबिलिटी है या फिर जो पेशेंट्स होते हैं जो मेंटली भी ये नहीं होते, बिकॉज क्या होता है नहीं हो तो फिर आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है. अगर मानसिक रूप से समझ नहीं सकता है कि उससे करना क्या है ऑपरेशन के बाद, तो ऑब्वियसली उनके लिए आप नहीं कर सकते. बट दैट अपार्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर हम देखें कि किन पेशेंट्स में ये नहीं करना चाहिए, ये सबसे मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है अगर जॉइंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो. तो अगर इन्फेक्शन एक्टिव है तो डेफिनेटली ये करना नहीं है, बिकॉज कोई भी इन्फेक्टिव इस सिचुएशन में कहीं पर भी आप मेटालिक इम्प्लांट अंदर नहीं डाल सकते. अगर वो डालेंगे तो वो डेफिनेटली करो. दूसरी चीज़ ये है कि अगर बॉडी में और कहीं पर भी कोई, तो वो नहीं करना, उन्हें नहीं करना है.
तीसरे वो पेशेंट्स हैं जिनके घुटने ऑलरेडी फ्यूज़ हो चुके हैं किसी भी वजह से, सर्जिकली फ्यूज्ड या इन्फेक्शन के बाद होने वाला जो फ्यूजन होता है। अगर सर्जिकली फ्यूज्ड है और घुटना ठीक से चल रहा है और वो अपना वज़न खुद दे पा रहे हैं, उसमें दर्द नहीं है, परफेक्टली फ्यूज्ड है, तो उन पेशेंट्स में भी हम लोग नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट नहीं करते। इवन दो देर आर सम पीपल हु डू फॉर द हिप जॉइंट लाइक दैट, बट वी डोंट सजेस्ट फॉर द नी जॉइंट एट ऑल, कि बेटर नॉट टू टच। पर देखो जो मॉर्बिडली ओबीज होते हैं, मैंने बोला बहुत ही वीक है, कोई दूसरी नर्व की बीमारी हो या ब्रेन से कोई रिलेटेड कोई बीमारी हो, जिसके कि मसल्स भी इतने कमज़ोर है कि वो घुटने को सीधा कर ही नहीं पाएंगे, तो उनमें भी ये नी रिप्लेसमेंट फिर सक्सेसफुल नहीं होता है। एक पोलियो का एक सबसेट है जिनमें हम लोग मतलब कर सकते हैं। देयर इज़ वेरी लिमिटेड स्टडीज़ ऑन पोलियो पेशेंट्स अंडरगोइंग नी रिप्लेसमेंट, बिकॉज हमारे यहाँ पे पोलियो काफ़ी साल तक था पहले, अभी लकीली टच वुड वी आर out of it, and now only probably some few countries are endemic. तो पोलियो में फिर भी डिफॉर्मिटी वाले जो पेशेंट्स हम अभी भी देखते हैं आजकल भी, इवन नाउ दे आर देयर। इन दोज पेशेंट्स इफ़ द थाई मसल्स आर गुड, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर थाई मसल्स मजबूत है तो उनमें हम लोग कर सकते हैं। इवैल्यूएशन इज द की, इवैल्यूएशन इज़ द की। एंड पोलियो इज़ टेक्निकली चैलेंजिंग बिकॉज होता क्या है कि बोन का शेप बदल जाता है, दे आर थिनर इन साइज देन द नॉर्मल बोन्स, सो कभी कभी स्टैंडर्ड जो इम्प्लांट्स हमको मिलते हैं वो लगा नहीं सकते। यार दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सबसेट, बट दीज आर द इंडिकेशंस एंड नॉन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। मतलब जैसे कि हम बिल्कुल भी इन्फेक्शन वाले पेशेंट को नहीं टच करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। उसको पहले कंट्रोल करो और उसके बाद जब वो पूरा मतलब टेस्टिंग से देखो कि पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, ओनली देन यू कैन टेक अ चांस, बट दैट ऑल्सो टेक अ चांस, इट इज़ लाइक दैट। We should not wait for the last moment. जब भी इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, रूल आउट करना चाहिए, तो हम बहुत सारी चीज़ को बाईपास कर सकते हैं। और अगर हो भी गया है, आई थिंक द डॉक्टर्स वुड बी द राइट पर्सन टू गाइड अस what decision should be taken at which moment. Correct. And more importantly, I feel no patient should go directly from without doing physiotherapy or without doing lifestyle modification, at least for stage 1, stage 2, stage 3, and directly go for knee replacement. That is, I think, not correct. I think every patient should first give it this a try. अगर नहीं होता है इन सभी ट्रीटमेंट से, तो नी रिप्लेसमेंट तो कभी भी कर सकते हैं। इमरजेंसी तो है नहीं कि नी रिप्लेसमेंट कल ही करो, ऐसा तो है नहीं। तो ये ट्राई करके देखो, अगर नहीं होता है तो फिर आगे नी रिप्लेसमेंट का सोच सकते हैं, ऑप्शंस होते हैं। आप पहले कैसे होता था कि पहले पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट बोलो तो पेशेंट भाग जाता था, ठीक है ना। आजकल उल्टा हो रहा है। इन मेट्रोज यू फाइंड दैट पीपल आर कमिंग एंड आस्किंग लाइक कि भाई हाँ उनका अच्छा हो गया, मैंने देखा हमारा भी थोड़ा घुटना दुख रहा है, हमारा भी कर दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप पहले कसरत करिए, फिजियोथेरेपी करिए, एंड टू काउंसिल दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज अदरवाइज नाउ डेज पेशेंट्स कम एंड देन दे से नहीं हमारा भी कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो वी हैव सम अ फुल सर्कल फ्रॉम वन एंड ऑफ स्पेक्ट्रम टू द अदर। बिकॉज पीपल आर नाउ अवेयर, लॉट ऑफ पीपल दे आर अवेयर, बिकॉज यू नो द डिसीजन मेकर्स, द सन एंड द डॉटर, दे आर द डिसीजन मेकर्स, दे आर रीडिंग मेनी आर्टिकल्स, so that's why it is like a hope, a chance they want to present to their parents. Maybe many time they unknowingly, knowingly also they feel for something. That's great, doctor. के थ्रू डॉक्टर ने जैसे बताया कि फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ऑर्थोपेडिशियन से मिलते हैं, एंड फिजियोथेरेपी स्पेशली जो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट है उनका सलाह लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चल के जो हम अभी रोक सकते हैं बिफोर इट्स टू लेट, राइट। सो नाउ डॉक्टर, द लास्ट क्वेश्चन वी वुड लाइक टू आस्क वंस अगेन, लाइक how to protect your joints, how to manage the joint pain, how to prevent osteoarthritis. Is there any way? कोई रास्ता है जो हम इसको रोक सकते हैं, या फिर यंग एज में ही हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें? So studies have shown that cartilage, जो जॉइंट का जो लाइनिंग, जो हड्डी के एंड का जो लाइनिंग होता है, वो अराउंड 35-40 के आसपास डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सिम्टम्स कोई पेशेंट्स में 60 में आते हैं, कोई में 45 में भी आ जाते हैं। सो दैट डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट। तो एज सच आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, मतलब ये डिजेनरेटिव है कुछ कंपोनेंट, तो जैसी उम्र बढ़ेगी तो धीरे धीरे होना ही है वो। बट जैसे मैंने कहा कि आप अगर अपने जो मसल्स है उसको अगर आप मजबूत करो, जैसे फिजियोथेरेपी वाले एक्सरसाइजेस करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाले जो एक्सरसाइज,
थेराबैंड के साथ जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करके हड्डियों को मजबूत रखो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फिजिकल एक्टिविटी कुछ हद तक तो होनी ही चाहिए। एक्सरसाइजेज और नी के एक्सरसाइजेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Differently is that once you start crossing over 40-45, हाई इम्पैक्ट वाले जो गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह रहते हैं, जैसे जंपिंग हुआ या फिर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करना हुआ, तो वो थोड़ा सा कुछ लेवल तक कम कर दीजिएगा। बट एरोबिक एक्सरसाइजेज आर रिकमेंडेड डेफिनेटली, and more importantly also maintain a healthy diet. As such there is no diet for arthritis, to prevent arthritis. ऐसे कोई मतलब विशेष कोई खाद्य पदार्थ नहीं है कि आप ये खाओ तो ठीक रहो। देर आर सम स्टडीज अबाउट हल्दी एंड देर आर सम स्टडीज अबाउट मेथी एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। यस, एंड नाउअडेज वी आल्सो हैव मेडिकेशंस विद दिस टर्मरिक एक्सट्रैक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हिच इज नाइस। ऑफ कोर्स यू कैन टेक ऑल दैट, बट एज सच देयर इज नो डाइट दैट यू कैन से कि ये खाओ तो ये नहीं होगा। होना है डाइट, आपको बैलेंस्ड रखना है, मेंटेन रखना है बराबर से कि आपका कैलोरिक इनटेक और आपका कितना एक्सपेंडिचर, कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है हर दिन। तो एक आइडिया होता है कि जनरली 1800 to 2300 इज़ फॉर अ मिडल एज्ड वीमेन, 2300 to 2600 कैलोरीज इज़ अप्रॉक्सीमेटली फॉर अ मिडल एज्ड मैन। तो आपको इतने में अगर रहना है ज़्यादातर, और अगर आप वेट लॉस अगर कर पाते हो तो दैट इज़ नथिंग लाइक इट, दैट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ट। नॉट ओनली जस्ट द वेट लॉस अफेक्ट्स द जॉइंट्स, बट ऑल्सो अगर डायबिटीज़ होने के चांसेस, आपके हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस, ऑफ कोर्स एवरीथिंग reduces. So while there is no such one pill cure all kind of scenario for joint to prevent degeneration, बट आप एटलीस्ट अपने बॉडी को और अपने आप को फिट रखो, तो वो प्रॉब्लम जो आपको शायद 60 में आएगी वो शायद 70 में आएगी वैसे। सो वी हैव टेकन 10 years of active life, that is good, no? Why not? Very true, very true. So if you want to become active when you for a long time, so the lifestyle modification is the only key. Yeah, and has to start early at 35-40. Yes. At latest at 35-40. क्योंकि बहुत सारे young groups में अभी ये सब problems हैं, because they are working in desk and they are standing for a long time, maybe or maybe sedentary lifestyle. Wonderful, doctor. It's very eye-opening. All of our audience also got a lot of insights about osteoarthritis and related problem, and even when to take a decision for knee replacement, who are the right candidate for knee replacement, and what are the investigations we can do to identify this condition. All these things I think we have explained, and if you have any questions you can ask. Doctor, last give us some tips today to the audience today, based on your vast experience in this field, like any restrictions, food habits, diets, or overall how to take care of the joint and bone health. How can I improve my bone and joint health? Okay, so now understand that joints arthritis is different, bone osteoporosis is different, right? Both. Bone also definitely works because osteoarthritis होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसको है कि आप डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिससे कि आपका कैल्शियम कंटेंट और विटामिन डी कंटेंट नॉर्मल हो। अक्सर हम लोग विटामिन डी की कमी देखते हैं पेशेंट्स में, तो विटामिन डी की का एटलीस्ट 500 to 1 ग्राम कैल्शियम होता है। एरोबिक एक्सरसाइज अगेन वर्क्स वेरी वेल। स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग करते हो तो दैट इज़ अनदर वेरी एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर जॉइंट्स एंड बोन्स इन जनरल। और एरोबिक्स के मतलब एटलीस्ट आपको समझ लो कि 150 मिनट्स पर वीक करना है। सो डिवाइडिंग इट इनटू से 20 मिनट्स, एटलीस्ट 3 to 5 days पर वीक वी हैव टू डू। और प्रोटेक्शन तो वही है कि ज़्यादा मतलब हाई इम्पैक्ट वाले स्पोर्ट्स और एज यू एज 40-45 हाँ थोड़ा सा वो थोड़ा कम करना है। मसल्स को मजबूत रखना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और नॉर्मल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से। Wonderful, doctor. Thank you so much, doctor, for giving us, and we wish that we will conduct many other many programs for our audience in future as well. So hope we understood the role of bone and joints, right exercises, balanced diet. Talk to your healthcare provider for ongoing pain at the earliest. Don't ignore pain. Body is asking for help, and we are always available over